Next paragraph for question number 13 and 14 is a point charge Q is moving in a circular orbit of radius r in xy plane with angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop carrying a steady current q omega by 2 pi. A uniform magnetic field along the positive z axis is now switched on, which increases at a constant rate from 0 to b in 1 second. Assume that the radius of the orbit remains constant. The application of the magnetic field induces an EMF in the orbit. The induced EMF is defined as the work done by an induced electric field in a moving a unit positive charge around a closed loop. It is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with a proportionality constant gamma. Now the question is, the magnitude of induced electric field in the orbit at any instant of the time during the time interval of the magnetic field changes: A, Br by 4, B, Br by 2, C, Br, and D, 2Br. This has been asked in IIT JEE Advanced 2013 +3 and -1 marks. Very nice question based on induced electric field, Faraday's law of electromagnetic induction. Now it is given in the problem that a charge q is rotating in a fixed radius with angular velocity omega. हम sense इसका मान लेते हैं कि this charge is rotating in the direction and this will constitute a direct current which is equivalent to q omega by 2 pi. It is given, और अगर ये नहीं भी दिया रहता तो we can easily calculate it. Now one more thing is because the plane of coil is in along xy plane and this magnetic field is increasing along positive z axis, and rate of increase of magnetic field is this dB by dt, which is equal to b. It is already given. तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर ई डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ई डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, सो सबसे पहले हम ये करें कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. देखिए अगर बी इंक्रीज कर रहा है, अगर ऐसे हम करें तो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज. सो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इट विल अपोजिंग द कॉइल प्रोड्यूसिंग इट. सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज. आप अपने से देखो पूरा थ्योरी बताया जा चुका है. एंड सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट. जैसे अगर मान ली कि ये इन सब पॉइंट पर हम देखें तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और यहाँ पर हम ये लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, द क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस्ड इंटू डी एल. अगर इसका रेडियस हम ले लेते हैं आर, अगर इसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, राइट, इसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, तो इस रीजन पर अगर हम लगाते हैं ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट, माइनस डी फाई बाई डी टी. और ये देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इंड्यूस्ड, सो दिस ई इंड्यूस्ड और डीएल कितना हो जाएगा, डीएल लेंथ ऑफ दिस पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर. सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी फाई बाई डी टी, ए इंटू dB by dt. This is a into dB by dt minus a into dB by dt. We can say हमको इंड्यूस्ड फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, सो ये a कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर, राइट, दिस इज पाई आर स्क्वायर. माइनस है तो मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई नहीं, तो दिस पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल हो गया आर से, राइट. dB by dt given in the problem E, therefore we have E induced will be equal to how much, E induced will be equal to कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से dB by dt इसका वैल्यू दिया हुआ है B. so this is equal to BR by 2. this is BR by 2. so यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, the magnitude of induced EMF माइनस BR by 2 होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, we have magnitude of induced EMF, this is equal to simply BR by 2. So our option B will be correct. Question for
the same paragraph is the change in the magnetic dipole moment associated with the orbit at the end of the time interval of the magnetic field change is A minus gamma BQR square, B minus gamma BQR square by 2, and C gamma BQR square by 2, and D gamma BQR square. This has been asked in JEE Advanced 2013 plus 3 and minus 1 marks. It is given in the comprehension that it is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to angular momentum with proportionality constant gamma, right? Magnetic dipole moment vector M, magnetic dipole moment vector M is proportional to what is angular momentum. This is proportional to vector L, or we can say that this vector M is equal to gamma, constant of proportionality दिया हुआ है gamma into vector L. It is given in the problem. Now अब ये देखना होगा हमको कि what is the source, ये कैसे एंगुलर मोमेंटम कैसे प्रोड्यूस होगा. तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर चार्ज Q है और इस Q चार्ज पर E फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, राइट. तो दिस विल प्रोड्यूस ए टेंजेंशियल फोर्स कितना QE, और ये पूरे R रेडियस के ये पर लग रहा है. तो टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अबाउट दिस ओरिजिन कितना हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू टाउ ई, टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा. फोर्स कितना होगा, Q चार्ज है तो दिस इज Q इंटू ई, राइट. Q इंटू ई और इंटू दिस फोर्स इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है तो दिस इज R, और ये सेंस क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं निगेटिव, क्योंकि इसका ये करेंगे तो दिस विल प्रोसीड इन अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस हमारा आउटवर्ड है. सो दिस T विल बी इक्वल टू माइनस QE इंटू R. सो व्हाट विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन. अगर मान लेते हैं इसके रोटेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है तो दिस अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, राइट. सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टाउ का वैल्यू कैलकुलेट कर चुका है माइनस QE R डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर. ये रिंग दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू MR स्क्वायर. सो दिस R से R स्क्वायर कट गया, सो दिस अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस QE बाई MR. सो व्हाट विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, दिस इज माइनस QE इंटू MR, राइट. और डेल्टा टी का वैल्यू क्या पर सेकेंड दे रहा है तो दिस इज 1, तो दिस इज 1. सो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस QE बाई MR, राइट. अब E का वैल्यू देखिए, यहाँ E का वैल्यू पिछले प्रॉब्लम हम निकाल चुका है कि द वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल टू BR बाई 2. तो E का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पर BR बाई 2. देखिए इस E को मिटा देते हैं और इसका वैल्यू रख देते हैं, दिस इज नथिंग बट BR बाई 2. यहाँ पर 2 कर दिए तो R से R कैंसिल हो गया. सो ये कितना हो जाएगा, दिस डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू हाउ मच, QB माइनस QB डिवाइडेड बाई 2m. दिस इज माइनस QB डिवाइडेड बाई 2m. दिस विल बी आवर what, change in change in angular velocity, right. अब ये गिवन है कि दिस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर M इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ L गामा टाइम्स ऑफ L. तो यहाँ से हम देखते हैं कि और क्या हो जाएगा, वेक्टर M इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ L, और इसको हम लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ, दिस विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ I इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट. गामा टाइम्स ऑफ I इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट. तो ये कितना हो गया, देखिए गामा इंटू MR स्क्वायर हो जाएगा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर, और ये कितना है, दिस इज माइनस QB, दिस इज माइनस QB बाई 2m. तो देखिए M से M कैंसिल हो गया, राइट. तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस हाफ गामा
QB R square. So this is QB R square. So this will be expression for magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment, M will be equal to minus R gamma QB R square. So our correct option is option B. देखिए आप इस फिगर में our correct option is option B.